The monsoon session of Parliament has begun and the fireworks by opposition is expected. In a customary speech to the media ahead of the session, Prime Minister Modi backs for constructive debate in both houses of the Parliament. Prime Minister said that the government are all ready to face tough questions from the lawmakers. He's also coined a new term saying that vaccine makes you Bahubali. On the issue of COVID, Prime Minister said that he wants to plug all loopholes to fight against COVID. Meanwhile, the battle lines have already been drawn. The opposition is going to be cornering the government over a whole host of issues like the mishandling of the COVID pandemic, fuel price hike, the inflation, farm laws, slow pace of vaccination and decline in economic growth in India. TMC, Congress, RJD and Aam Aadmi Party have been given adjournment, adjournment motions in both the lower and upper houses to discuss various issues. Congress has given notice to discuss issues of fuel price hike and inflation. TMC has given multiple notices demanding to discuss fuel price hike, vaccination and many other issues. RJD's Rajya Sabha MP Manoj Jha gave a suspension of business notice to discuss COVID death data. अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, अब तो नोटिस हम दिए हैं, इन्फ्लेशन पे दिए हैं, चंद लोग फार्मर्स इश्यू पे दिए हैं, तो उन मुद्दों को यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किन चीज़ों पे मंजूरी मिलती है या एग्री होते हैं वो विषय आएगा, लेकिन हम तो इन्फ्लेशन और फार्मर इश्यू उठाने वाले हैं। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलेंस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। सदन चलने देंगे ऐसे बोलने का ये भाषा गलत है। स्ट्रक्चर डिबेट जो कुछ भी नोटिस देना है वो देने दो, सरकार बीएससी में वगैरह तैयार होगा। सरकार किसी चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है सार्थक चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट फर्मली बिलीव्स इन दैट। Kamalji Sandhu is reporting from Delhi, bringing our viewers up to speed for the very latest. Kamalji, a lot many issues have to be discussed. Lot many bills are going to be tabled as well. If you could walk our viewers through an overview of what is to be expected from the monsoon session, and of course the opposition is going to be coming all guns blazing on the Modi government. Well, the weather may be a damper, but fireworks expected in the Parliament. This is the first day. Prime Minister Modi is expected to introduce his new cabinet to both sides of the houses. But what is more important and significant is that the opposition has already prepared a chart list of how they will attack Modi government, be it COVID management, whether it's vaccination, whether it's the Rafale deal, and now the latest headache for the Modi government is the Pegasus. Now, there has been a denial which came in from the government saying they believe in the ethos of democracy. There is not a surveillance state as being alleged by the opposition. But this is a charge which is not going to go away very soon. Some of them pressing for the Home Minister office or the Home Minister Amit Shah to really come out and give a statement in the Parliament. More revelations are expected today. So there are plenty of issues, the price rise, there are fuel hike, there are other issues. Now the Prime Minister on his own part had reached out to all party meeting yesterday saying he's willing to give a presentation to the opposition leaders, a thing they have denied. The offer has been put on the table today again.
So yes, they're saying give us time. We will get back to you, and we will make a presentation. Let the people of the country know it. But yes, since this is Parliament, fireworks expected. The opposition all willing. Yes, absolutely. Kamaljeet, fireworks are expected. Apologies about the interruption, but let's listen into cutting live to Rajya Sabha. Listen into what's going on. 2001, Padma Vibhushan in the year 2013. Dr. Raghunath Mahapatra was a nominated member of this House from July 2018 till his sad demise. In the passing of Dr. Raghunath Mahapatra, the country had lost a legendary craftsman and a sculptor for excellence. Sri Rajiv Satav passed away on 16th May 2021 at the age of 46 years. Very sad. Born in September 1974. Kamaljeet is with us right now. Kamaljeet, as the monsoon session of the Parliament begins from today, if you could just walk our viewers through the key bills that are on the agenda. If I'm not mistaken, and correct me if I'm wrong, there are 29 bills on the agenda. Oh, almost 31 of them. So there are near 30 bills, and important and significant is that one of them is obviously something to do with the privacy. This is something which has been reiterated by Prime Minister Modi and his cabinet. The fact is that this is going to be a very charged up session. We've already seen Rahul Gandhi picking up issues regarding inflation, price rise. There are obviously issues. People have been talking about uniform civil code, but that's not the one which has really appeared in the list. But yes, there is a big to-do list. 17 of them are very significant bills, and this is how things really stand as of now. But clearly, whether it's going to be easy task, because remember they have time till 13th of August to pass these bills. And if all goes well and the opposition does kind of let its support, that's what the all-party meet was really about, to have support from the opposition. We've seen as far as the numbers are concerned, now BJP is not too worried about Lok Sabha. There are a number of changes which have come. All right, hold on right there. Let's listen into Lok Sabha at the moment, cutting live. Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्री परिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें, माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में
नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख। अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। ओबीचरी बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। खड़े हों और ये प्रेशर डालें कि ये कानून वापस लें, क्योंकि ये काले कानून से देश का किसान तबाह हो जाएगा और ये समझ नहीं रहे मोदी सरकार। बादल साहब, अभी तोमर साहब कह के गए हैं कि हम किसान कानूनों पर भी बात करने को तैयार है, हर तरीके से बात करने को तैयार है। ये तो अगर साल से बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछे, साल भर से बात कर रहे हैं। अगर बात करनी होती तो वो बात खाली बुला करके और किसानों को फिर परेशान करके वापस भेजने का काम करते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं करते हैं। आज अगर सॉल्यूशन करना होता, एक लाइन में कर सकते हैं कि हम जो है कानूनों को वापस लेते हैं, कानून वापस ले लें, सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर जो बातचीत करनी है वो करें और नया कानून लेकर के आए। हम लोग कब कह रहे हैं कि नया कानून न लाइए, बातचीत करिए, अच्छा सा एक कानून लेके आइए। मैम, पर ये आज पहला दिन है सेशन का, बहुत सारे बिल्स भी लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कह रही है सब चीजों पर बातचीत करने को तैयार है। पिछली बार भी सेशन चला गया ऐसे ही। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, सेशन भी ऐसे ही होगा? देखिए, ना किसानों को ना पार्टियों को समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं, उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए। जिस किसान करके हम सब संसद में पहुंचे हैं, वो किसान 8 महीने से संघर्ष कर रहा है, 500 की खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना ओबिचुरी में उनका मेंशन किया गया है और ना ही काले कानून वापस किए गए हैं। तो हम पूरा दबाव बनाएंगे कि ये काले कानून वापस किए जाए और किसान की मांगे मानी जाए। सर, आपने क्या सस्पेंशन नोटिस दिया और कितनी पार्टी आपके साथ है? हम सारी पार्टीज को अपील किया है, बहुत पार्टीज हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ खड़ी है, बाकी अंदर हम डीएमके भी है, बाकी अंदर वेट कर रही हैं, आरएलपी सब कर रहे हैं। लेकर भी
breaking news coming in. Prime Minister introduces new ministers amidst the ruckus. There is sloganeering going on by the opposition parties. As you heard it right there, there's a massive ruckus in the parliament. New ministers have been spoken about. The Prime Minister started off by talking about the women ministers who have been inducted in his cabinet, and he has introduced new ministers at the moment as we speak in the lower house of the parliament. These are live shots that we just got you from Lok Sabha. There are also protests that are going on outside the parliament that we cut live and showed you. At the moment, the several issues that the opposition is taking up. The opposition is going on right there to object to a lot. And the Prime Minister is slamming the ruckus created by opposition. Listen into what's going on in the lower house of the parliament. 71 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश में हुआ। श्री जगदीश सिंह राणा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राणा प्राक्कलन समिति तथा वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जगदीश सिंह राणा का निधन 66 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल 2021 को सहारनपुर में हुआ। श्री श्याम बिहारी मिश्र 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मिश्र खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री श्याम बिहारी। Let's now listen in to what Prime Minister Modi had to say just about a while back.